Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Dr. Jahangir, and we are doing SK10, and this is the July medicine paper, second paper, and second, that is the last part. Sorry for the delay because I'm not feeling well, and this is a very difficult job. So that you are checking the MCQs, you are checking and counter checking and counter checking, and you are using 5 to 6 references so that there is error free discussion. So the medial relation of thyroid is the recurrent laryngeal, that is the right answer, recurrent laryngeal. You are having thyroid gland. If you see that thyroid gland, so the recurrent laryngeal enters on this side, on the medial side of. Most common cause of infective endocarditis in drug abuser is Staph aureus. Most common cause of infective endocarditis overall is Staph aureus. Staph aureus. I'm using the reference of USMLE. Uh, and the most common cause of infective endocarditis in subacute endocarditis is strep viridon. That is subacute. If you are going to in IV drug abuser, most common cause is Staph aureus. If someone has tooth extraction, what is the most common cause? Strep viridon. It enters through the tooth side. And strep viridon, we are having strep mutants and species like these. But strep viridon, strep viridon. And there is another MCQ. A person is having IUCD, and then he develop infective endocarditis. Well, the answer to that is coming toward that reference. So this is that reference that I was talking about. Uh, this is the most common cause of infective endocarditis, and it's usually fatal within 6 weeks if left untreated. In patient with prosthetic coil, pacemaker, ICD, implantable cardiac defibrillator, again the most common cause is the Staph aureus. So the most common cause of subacute endocarditis is viridon. Now the viridon group include what? Sanguinus, mutans, mitis. So they can actually change the scenario, and they can give you strep mitis or mutants or sanguinus. These are the subtype of viridon. Pre-damaged native walls. So subacute pre-damaged walls डेंटल प्रोसीजर के बाद ये होता है. एपिडर्माइडस कहाँ से होता है? इन्फेक्टेड पेरिफेरल वीनस कैथेटर से होता है. कॉमन काज, ये भी कॉमन काज है प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्स और पेसमेकर में, लेकिन इसकी परसेंटेज कम है. फिर स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस, लेकिन रूट ऑफ एंट्री डिफरेंट है. जो उसमें है जो इसमें डेंटल प्रोसीजर के साथ आएगा. मोस्ट कॉमन काज ओवरऑल आपका तो यही हो गया ना, प्रोस्थेटिक वाला ICD, ये सारी चीज़ें मोस्ट कॉमन तो ये है. सेकंड मोस्ट कॉमन काज आपका एपिडर्माइडस है. ये सेकंड मोस्ट कॉमन काज है इन प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स. एंटीरोकोकाई मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ये नोजोकोमियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से आता है. तो अगर नोजोकोमियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है एंटीरोकोकाई, स्पेशली एंटीरोकोकस फीकेलस. यहाँ पे एक चीज़ आती है जेनेटो यूरिनरी प्रोसीजर्स. तो आप जो UCD डालते हैं तो आफ्टर ICD पर्सन डेवलप्स इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, द आंसर इज एंटीरोकोकाई, एंटीरोकोकस फीकेलस, दैट इज द आंसर. बोइस कोलोरेक्टल कैंसर के साथ ये है, लेकिन दूसरा नाम भी उसका रट्टा कर ले क्योंकि वो चेंज कर सकते हैं. गेलोलिटिकस ग्राम नेगेटिव के आपके पास ये है सिख है. तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें रट्टा करो. कार्डियो बैक्टीरियम के इसमें पूछ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग कैन काज कल्चर नेगेटिव, gram negative and also culture negative. In immunocompromised,
इन इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट, आपके पास ये दो कैंडिडस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में। कोक्सिला बर्नीटी कल्चर नेगेटिव का मोस्ट कॉमन काज ये है, कोक्सिला बर्नीटी बोटोनिला स्पीशी, मोस्ट कॉमन काज यही है। बाकी जो अदर पैथोजन है वो हैसिक में आते हैं, हैसिक में। तो ये ग्राम नेगेटिव, तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का चार्ट है और इसी से आपको इसी तरह एमसीक्यू आएंगे। इसको रट्टा करें, इसी हिसाब से फिर याद करें। नियासिन दैट इज विटामिन B3, thiamine causes beriberi, thiamine deficiency, and it also causes Wernicke-Korsakoff syndrome. Riboflavin that is vitamin B2, that is B1. Riboflavin is B2, it causes angular cheilitis, and niacin causes pellagra. So coming next, nucleus abductus solitarius form, तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में कौन कौन सी चीज़ें हैं? न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस 9, 10 एंड 7। सो ये फार्मूला है इसको रटा करने के लिए। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, यू आर हैविंग 9th नरो, यू आर हैविंग 10th नरो, यू आर हैविंग 7th नरो। सो द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स एरिया such as the tongue, and they goes toward nucleus of tractus solitarius. Second order neuron start from the nucleus of tractus solitarius. So you are having first order neuron from the receptors. Let's suppose, for example, say tongue. Then it goes upward and it synapses in the let's suppose this is nucleus of tractus solitarius. The second order neuron starts from there, and it ends in the thalamus. From the thalamus, there is a third order neuron and goes toward the cortex. So from the thalamus, you are having third order neuron. So the second order neuron forms in nucleus of tractus solitarius. ends अगर आ जाए second order neuron तो thalamus है। First order neuron forms in, the answer is peripheral receptors. First order neuron ends in, answer is nucleus of tractus solitarius. Second order neuron starts in, answer is nucleus of tractus solitarius. Second order neuron stops in, ends in thalamus. Third order neuron starts in thalamus and ends in cortex. Most radiosensitive is lymphoid tissues. The lymphoid tissues are the most radiosensitive tissue. Let's come toward a chart that will explain all these MCQ. Another video regarding this sensitivity, because there is a lot of confusion. Drug worsening angina is, तो इसमें आपका थियोफाइलिन है, because it causes tachycardia. Let's suppose this is your heart, तो मैंने बूट बना दिया, ये आपका हार्ट हो गया, सही है। तो एंजाइना कब वर्सन होगी? या जो इसके वेसल में स्पाज्म हो गया, इसकी कंट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। तो कंट्रैक्टिलिटी थियोफाइलिन बढ़ाती है, तो थियोफाइलिन क्या करती है? टैकीकार्डिया करता है, और उसकी वजह से इसकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसकी एंजाइना वर्सन होगी। अगर थियोफाइलिन नहीं है तो फिर आपने वेज़ोप्रेशन करना है, क्योंकि ये आफ्टर लोड बढ़ाता है। लेकिन उसमें एक ट्रिक है, जब आपका वेज़ोप्रेशन आफ्टर लोड बढ़ाता है तो ये रिफ्लेक्स ब्रेडी करता है, तो आपकी कार्डियक एक्टिविटी रिफ्लेक्स ब्रेडी की वजह से एक्चुअली कम हो जाती है। ये इसमें एक ट्रिक है, लेकिन सेकंड लाइन पे ये रख के, फर्स्ट लाइन पे थियोफाइलिन है। थियोफाइलिन नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा इज काज्ड बाय, इसमें आपका एप्स्टीन बार वायरस है। लेकिन ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा का दूसरा काज है, वो आप सर्च कर ले कि ओरोफेरेंजियल का कौन सा है। ओरोफेरेंजियल में ह्यूमन पेपिलोमा है या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 है, ये आप सर्च कर ले। ओरोफेरेंजियल का अलग है, नेज़ोफेरेंजियल का एप्स्टीन बार वायरस है। कार्बोहाइड्रेट पैकिंग जो है वो गल्जी कम्प्लेक्स करता है। सारे भी जितने भी पैकिंग्स होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ये गल्जी कम्प्लेक्स करता है। ये पोस्ट ऑफिस है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज कोरोनरी ब्लड फ्लो इज मेंटेन बाय, तो लोकल मेटाबोलाइट्स है, बिल्कुल सही जवाब है। A girl presented to have allergic following bee sting, most probable due to, with allergic following bee sting, most probably it is due to हिस्टामीन। तो एलर्जी में आपका हिस्टामीन रिलीज होता है, बी स्टिंग में आपका क्या होता है? तो वही हिस्टामीन रिलीज होता है।
Vitamin C deficiency causes bleeding gums, internal jugular vein after leaving jugular foramen having immediate relation with। तो ये बार बार रिपीट होता है और इसका जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ये कौन सा है? MCQ 86। तो 86 की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला है, हाँ ये वाला है। तो इसका आंसर क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसका फाइनल जवाब है। ओल्ड मैन प्रेजेंटेड टू ER विद फेलिंग हार्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज। तो अगर वो ER में आ रहा है तो उसका हार्ट बहुत फेल है, तो वो सिम्टोमेटिक है, तो उसको सिम्टम्स ज़्यादा है। तो या तो ये पुअर रिकॉल है, इसमें BP भी देना चाहिए, पल्स भी देना चाहिए। अगर कहते हैं कि पेशेंट शॉक में है और पल्स है, BP बहुत कम है, तो फिर आपने डबूटामीन देना है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फेलिंग हार्ट एंड पेशेंट इज इन शॉक इज डबूटामीन, क्योंकि ये कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को भी बढ़ाता है, पेरिफेरल वासोडायलेशन भी करता है। लेकिन अगर पल्सलेस है तो पल्सलेस में बेस्ट इनिशियल कौन सा है? नॉरेपिनेफ्रिन। जब BP थोड़ी बढ़ जाए तो उसके बाद हम क्या लगा चेंज करते हैं? नॉरेपिनेफ्रिन को डबूटामीन के साथ चेंज करते हैं। तो इस पर थोड़ा फोकस करना है। पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, वो उस ही इज़ हैविंग हार्ट फेल बट ही इज़ हैविंग लो BP एंड ही इज़ इन शॉक बट द पल्स इज़ पल्पेबल, तो उसमें आपने फिर डबूटामीन देना है। अगर एक MCQ है, पेशेंट आ गया फेलिंग हार्ट के साथ लेकिन उसका पल्स पाल्पेबल नहीं है, बेस्ट इनिशियल क्या होगा? नॉरेपिनेफ्रिन, एंड देन चेंज द नॉरेपिनेफ्रिन टू डबूटामीन आफ्टर, जब पल्स आ जाए और वो BP रिकॉर्डेबल हो जाए। और अगर OPD में पेशेंट आ जाए फेलिंग हार्ट है, तो आपने फिर बेस्ट इनिशियल कौन सा है? AC इनहिबिटर। और अगर BP नॉर्मल है 100/60 एंड द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक नॉट इन शॉक, तो क्या दोगे फिर? लेसेक्स। बेस्ट इनिशियल आपका लेसेक्स होगा कि आपने सिम्टोमेटिक वाइज उसको इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे आपका डोपामिन आ गया, डोपामिन, क्योंकि ER में है ना। ER में क्यों है? लेकिन अगेन पुअर रिकॉल हो सकता है, आपने BP शिपी इस पर फोकस करना है। अगर OPD होता तो मैं किप्टोप्रिल चूज़ करता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेपेटाइटिस B मॉनिटरिंग इज, तो हम SGPT के साथ करते हैं या ALT के साथ करते हैं? SGPT और ALT इसका दूसरा नाम है ना। ड्रग दैट इंक्रीजेज हार्ट रेट ऑन नॉर्मल डोजेज, तो आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये पेरिफेरल वासोडायलेशन करता है और रिफ्लेक्स टेकी करता है, रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। ड्यूरिंग एस्थमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, तो एस्थमा में, एस्थमा के हवाले से दो और MCQ आते हैं। व्हाट आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इन एस्थमा, तो उसमें आपने मैक्रोफेजेस चूज़ करने हैं। व्हाट आर द प्रीडोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी सेल इन द एस्थमा, आंसर इज ईओसिनोफिल्स। यहाँ पे अगर एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्थमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज, तो उसमें आपका ल्यूकोट्राइन्स है, क्योंकि एस्प्रिन आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सपोज ऊपर से पाथवे आ रहे हैं, ये दो में कन्वर्ट होता है एरिकिडानिक एसिड, ल्यूकोट्राइन में और प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो एस्प्रिन आपका ये पाथवे बंद करता है, तो सारा जो है प्रीकर्सर वो ल्यूकोट्राइन में चले जाते हैं और ये ब्रोंकोस्पाज्म करता है। तो अगर एस्प्रिन इंड्यूस्ड एस्थमा हो तो उसमें क्या इंक्रीज होगा? ल्यूकोट्राइन। लेकिन अगर सिर्फ एस्थमा हो तो उसमें आपका मेनली हिस्टामीन बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। पेशेंट इंटीरियर वाले में है तो V1 to V4 और स्टीलिवेशन होगी। 2-3 AVF जो है वो इंफीरियर वाले में होती है। हाँ